Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. You'll have to be fine because today we are going to learn some interesting thing that is articles in English grammar. Okay, what are articles? That is a, an, and the. Okay, let's start. Are you all ready? Okay. Now, articles are a, an, and tha, the. Now, when do we use articles? Before any singular noun. Any singular noun, not plural. I mention any singular noun. Before any singular noun, you can use articles. Okay, so first we will start with an. An is an. We use an before a singular vowel or any vowel sound. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल ए एंड द हम लोग कब यूज़ करते हैं? कोई भी सिंगुलर जो सिंगल चीज़ होता है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ के पहले हम लोग आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं. प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल यू हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास, right? What are plurals? More than one. And what is singular? A single thing or one thing is called singular. So before any singular noun you can use articles. So when do we use an article? We use an article before any vowel or any vowel sound. Now what are vowels? Let's revise once again. A, E, I, O, U. What are these? These are 5 vowels. So before any vowel sound we use articles. Suppose what a vowel sound? H-O-U-R, R. Okay. Now H is a consonant. We all know H is a consonant. So you should know that we should use A before H, right? But since it's a vowel sound like R, okay, we are pronouncing it R. So R is a vowel sound. So that's why we use an before vowel sound and before any vowel. Okay, like an R, an I, an ice cream, an apple, an ox, an orange, an ice, an elephant, an apple. Okay, so before any vowels or before any vowel sound you use an. Next we come to a. Now when do we use a? We use a for any singular noun before any general object or general thing. Okay, कोई भी जनरल किसी भी सिंगुलर चीज़ के पहले हम लोग ए यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट आर दे? सपोज ए केक, अ बॉक्स, a gift, okay, a bottle, a bag. Okay, so before any singular noun, before any, no vowels, no nothing, vowels के पहले हम लोग ए एन यूज़ करते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स के पहले हम लोग ए यूज़ करते हैं बिफोर एनी सिंगुलर नाउन जनरल में. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द, THE, the. Now for the we use for specific reason. Okay, suppose the Taj Mahal. The Taj Mahal. Taj Mahal is the name of a place, name of a famous monument. So it's for a specific reason we are using THE, the. Now suppose I have written I bought some fruit, the fruit was bad. Now fruit is an uncountable noun. Uncountable means जो एक से बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते. Like fruit, like stars, we cannot count stars. Do we count stars? आसमान में जो तारे चमकते हैं क्या हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं. सो आई बॉट सम फ्रूट, द फ्रूट वॉज बैड. बहुत सारे फ्रूट के बीच में मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते. ओके, पर वही सेम फ्रूट को अगर हम लोग बाद में यूज़ कर रहे हैं, वही सेम फ्रूट को हम लोग बता रहे हैं कि वो ख़राब है, तो वो सेम फ्रूट ख़राब है, दूसरा फ्रूट नहीं, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. ओके, सेकेंड टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट द सेम नाउन यू यूज़ द. जब हम लोग दूसरी बार वही सेम चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग द यूज़ करेंगे. सपोज द स्पीकर एंड द लिसनर बोथ नोज. ओके, जैसे कि
I and you are going to the same school. Okay. मुझे भी पता है मैं कौन से स्कूल में जाती हूँ, आपको भी पता है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो. ओके. सो हम दोनों का स्कूल का नाम सेम है, मुझे भी पता है आपको भी पता है स्कूल का नाम, इसीलिए हम लोग उससे पहले भी द यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पीकर मतलब मैं और लिसनर मतलब आप. स्पीकर मतलब जो बोलते हैं, लिसनर मतलब जो सुनते हैं. हम और आप दोनों का चीज़ अगर सेम मीनिंग समझाता है तो उससे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, THE द यूज़ करेंगे. नाउ 1% ऑफ कंट्रीज़. ओके. कुछ कुछ कंट्रीज़ के पहले हम लोग द यूज़ करेंगे, जैसे यूनाइटेड, अगेन अन अनकाउंटेबल नाउन. यूनाइटेड मतलब सारे एक साथ. जब ये समझाते हैं तो उससे पहले हम लोग द यूज़ करते हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके. द यूनाइटेड एमिरेट्स, ये सब के पहले हम लोग द यूज़ करते हैं. लेकिन क्या हम लोग, इंडिया भी तो कंट्री है, जापान भी कंट्री है, क्या हम लोग इससे पहले द यूज़ करते हैं? नहीं. वाई? बिकॉज इट्स अ सिंगल कंट्री नेम. जब कंट्री का नाम दो नाम से ज़्यादा होता है तब भी हम लोग द यूज़ करते हैं. वी डोंट यूज़ द न्यूजीलैंड. ओके. बट वी यूज़ द when the country name has more than two words. The United States of America. देखिए, दो नाम से भी ज़्यादा नाम है. ठीक है, दो वर्ड से भी ज़्यादा नाम है. द यूनाइटेड एक, स्टेट्स एक, ऑफ एक, अमेरिका एक. चार वर्ड के पहले, दो से ज़्यादा वर्ड के पहले हम लोग कंट्री के नाम पे द यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, we use the when the country has small or tiny islands inside it. जैसे बहुत सारे कंट्री के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स रहते हैं, छोटा छोटा, तो तब भी हम लोग उससे पहले द यूज़ करते. लाइक द वेस्ट इंडीज़, द फिलीपींस. ओके. उससे पहले भी द यूज़ कर सकते हैं. सो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है कि द हम लोग कब कब यूज़ कर सकते हैं. सिंगुलर नाउन से पहले तो आर्टिकल्स यूज़ ही कर सकते हैं. वावल से पहले ए एन एन. कोई भी जनरल सिंगुलर नाउन के पहले अ. एंड कोई भी स्पेसिफिक रीज़न से पहले द. कोई भी नाम, कोई भी जगह का नाम, ठीक है, कोई भी इंसान का नाम, कोई भी फेमस पर्सनालिटी का नाम, ठीक है, कोई भी फेमस सेलिब्रिटी का नाम, कोई भी फेमस बुक का नाम, ठीक है, वो सब के पहले हम लोग THE द यूज़ करेंगे. एंड वेयर वी यूज़ द सेम नाउन in the second phrase of the sentence. We use the. When the speaker and the listener both are talking with the same subject, we use the before that. And 1% of the countries which describes uncountable noun, उससे पहले the. More than two words country name के पहले the. ठीक है. एंड जिस कंट्री के भीतर बहुत सारे छोटा छोटा आइलैंड होता है उसमें भी हम लोग द यूज़ करते हैं. लेकिन हम लोग द जापान नहीं यूज़ करते, क्योंकि जापान के अंदर भी आइलैंड्स है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा आइलैंड्स है. लेकिन वेस्ट इंडीज़ के और फिलीपींस के अंदर बहुत छोटा छोटा आइलैंड्स है. जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा. ठीक है. तो उससे पहले हम लोग द यूज़ करते हैं. These are not necessary in this class, but you'll have to know, since this is English grammar, so you'll have to know how to use a and the. So students, this is the task for today. I hope you all have understood. Go through this, practice this, and learn this properly, understand it properly. Take care. Bye bye.